مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں، تشریف رکھیے۔ جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا، میرا نام پاسٹر عرفان پال ہے، میرا تعلق برکت ٹی وی سے ہے۔ سنیں کچھ نہیں ہو گیا آپ سنیں کلام سنیں۔ برکت ٹی وی پہ ایک شو ہمارا چلتا ہے جس کا ٹائٹل ہے، جس کا نام ہے صحت ایک برکت۔ یہ صحت سے ریلیٹڈ شو ہے، اس شو کو میں ہوسٹ کرتا ہوں ٹی وی پہ، اور خدا کے خادم پاسٹر صالح جان برکت صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو سلام قبول ہو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے نہایت ہی قابل احترام اپنے پیارے بڑے بھائی پاسٹر مائیکل مسیح کے لیے جو شانتی نگر سے ہیں، ان کی وساطت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم یہاں پہ پہنچے، اور پھر میں نہایت شکر گزار خدا کے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر آصف صاحب کے لیے، انکل خورشید صاحب کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ کچھ لوگ بیچ میں سے خوش نہیں ہیں۔ شاید کچھ کو بابا والوں پہ غصہ ہوگا، کچھ کو سردی کی وجہ سے غصہ ہو سکتا ہے، لیکن پادری صاحب کی بات میرے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی۔ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات میں سے اپنے لیے بھلائی دیکھتے ہیں۔ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام میں اپنے لیے اچھائی، بھلائی، وہ ہر ایک اچھی چیز ہر کام میں سے اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آج بابلا والوں نے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پریشان کیا، لیکن انہوں نے کہا خدا کا شکر ہو کہ ہم سب آج مل کے خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ خوش ہیں؟ آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ کرسمس کا سیزن ہے، اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے کرسمس کے تعلق سے سیکھیں گے اور اپنے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ کتنے لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا! آئیے میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ جی پلیز آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ پادری صاحب نے بتایا کہ چرچ میں یہ روایت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو عزت دینے کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور خدا کے کلام کو دیکھیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ 21ویں سے لے کر ہم 23ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کلام خدا کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آپ بڑی تشریف رکھیے۔ خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے جو حصہ تلاوت کیا، یہ
रखना। और 23वीं आयत में लिखा है उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं और ये क्रिसमस जो है ये हमारी जिंदगियों का पहला क्रिसमस नहीं है, या जिंदगी में पहली दफा हम क्रिसमस का पैगाम नहीं सुनने वाले, बल्कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अपनी पैदाइश से अब तक खुदा का कलाम सुन रहे हैं। हम उन खुदाम के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिनके वसीला से निजात की खुशखबरी का पैगाम यहाँ पे फैला। लेकिन यहाँ एक गौर तलब बात है, यहाँ एक सवाल है, और ये सवाल आज हम सब के लिए है। 21वीं आयत में लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, और 23वीं आयत में है कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। अब बतौर ईमानदार कोई सवाल ज़हन में आया कि नहीं? एक जगह पे है कि तू उसका नाम यीशु रखना, और एक जगह पे है कि तू उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। कोई इस बात का जवाब दे सकता है? क्यों जी? किसी के पास इस बात का जवाब हो? क्यों जी? भाई ने हाथ खड़ा किया जी। क्योंकि दोनों कैटेगरी इसके अंदर थी, इंसान के लिए थी, ताकि इंसान के साथ वो रहे और इंसान को बचा जी। बहुत शुक्रिया। किसी और के पास जवाब हो? बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम से आप वाकिफ हैं। यीशु की जो जिंदगी है उसमें बेशुमार लोग उसको मुखातिब करते, उसको पुकारते, और वो उनकी दुआओं का जवाब भी देता। यहाँ तक कि बहुत सारे ज़रूरतमंदों ने उसको पुकारा, और उसको पुकारने का अंदाज, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, कहीं भी हमें इमैनुएल के नाम से उसको किसी ने पुकारा हो, हमें ये नहीं नजर आता। इस चीज को सीखना, जानना ईमानदारों के लिए इंतहाई जरूरी और अहम है। जहां पे लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु के नाम का मतलब क्या है पता है? यीशु के नाम का मतलब ही यही है, निजात देने वाला, या खुदा निजात देता है, खुदा बचाता है। ये यीशु के नाम का मतलब है कि खुदा बचाता है, यीशु निजात दहिंदा है। जब यीशु का नाम कहा गया कि यीशु रखना, तो खुदा उसके नाम में उसके मिशन को भी जाहिर करता है कि यीशु इसलिए दुनिया में आया ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। बनी नौ इंसान जो तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, जो अंधेरे में थे, यीशु नूर इस दुनिया में आया और उसने बनी नौ इंसान की जिंदगियों में से तारीकी को दूर कर दिया। इसलिए तो आज हम ये गीत गाते हैं कि रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। ये रोशनी पहले नहीं थी, पहले इंसान के पास कोई उम्मीद भी नहीं थी,
लेकिन यीशु जिसके नाम का मतलब कि वो निजात दहिंदा है, जब वो इस दुनिया में आया तो उसने इंसान को निजात बख्शी। अब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके बेटे यीशु के खून से खरीदे गए, उसके खून से धोए गए और अब हम निजात पा चुके हैं। आइए उस निजात दहिंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये है यीशु नाम का मतलब। यीशु बचाता है, निजात देता है। इमैनुएल का मतलब भला क्या है? हाँ जी, खुदा हमारे साथ। और मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि ये जो इमैनुएल है, ये यीशु का नाम नहीं बल्कि उसका एक टाइटल है, उसका लक़ब है, उसकी एक खूबी को जाहिर करता है। उसका नाम तो यीशु है, लेकिन ये उसकी खूबी है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। उसने वादा फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कभी तन्हा ना छोड़ने का वादा करता है। उसकी यह खूबी है कि वो अपने लोगों के साथ साथ है। अगर आप देखना चाहते हैं उसकी खूबी को, तो आपको सिदरत मिशक और अब्दुल के साथ वो आग की जलती हुई भट्टी में नजर आता है। अगर आप उसको बतौर इमैनुएल देखना चाहते हैं तो वो आपको डैनियल के साथ शेरों की मांग में भी नजर आता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो अपने लोगों के लिए बियाबानों में भी मौजूद है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप खुद इस चीज के गवाह हैं कि वो आपकी मुश्किलात में, आपकी तंगियों में, आपकी परेशानियों में, आपके दुखों में, आपकी मुसीबतों में वो आपके साथ साथ है। कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो ऐसा खुदा है जो हम सब की फिक्र करता है। वो ऐसा खुदा है जो हमसे प्यार करता है। अजीजों, उसके नाम का मतलब, उसका एक टाइटल, उसकी एक खूबी कि वो हमारे साथ है। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है? हालेलुया। कितने लोग ये कह सकते हैं ऊंची आवाज में जरा? क्या आपका खुदा आपके साथ है? आज कलामे खुदा में से हम इस बात पे गौर करेंगे कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हमने इस हवाले में ये पढ़ा ताकि नबी की मार्फत जो कहा गया है वो पूरा हो कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। किसी को पता है नबी की मार्फत ये कहाँ लिखा है? यशाया नबी के सहीफा में उसके 7वें बाब और उसकी 14वीं आयत में कि देखो एक कुमारी हामिला होगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। ये नबी की मार्फत कह दिया गया कि जब बेटा पैदा होगा तो वो अपने लोगों के साथ होगा। वो अपने लोगों को गुनाह की हालत में ना छोड़ेगा, बल्कि वो खुद उनके लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे देगा। इसलिए यीशु के ताल्लुक से लिखा है, देखो वो खुदा का बंदा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। वो यीशु मसीह
इसलिए इस दुनिया में आया ताकि आप और मैं गुनाहों की गुलामी से रिहाई पा जाए और आप और मैं हमारे जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए। हम जो कोई कौम, कोई उम्मत, कोई कबीला ना थे, हम यीशु मसीह के वसीले से अब खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, देखो क्या लिखा है भला वहां पे, खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई इस पर आग ना हो बल्कि। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा की जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ जो खुदा के बच्चे हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, सिर्फ उनकी मिरास है, क्योंकि उनके लिए यीशु का बेशकीमत खून बहा है। आज हम इस पैगाम पर कुछ देर के लिए और गौर करेंगे कि हमारा खुदा हमारे साथ है। जब हम कहते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, तो इसमें सबसे पहली और अहम बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि हमारा खुदा हमेशा अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। जब उसने यशायाह की मार्फत ये कहा था कि उसका जो बेटा होगा वो इमैनुएल है, वो अपने लोगों के साथ साथ होगा, तो यहाँ हमें उसके वादे पूरे होते हुए नजर आते हैं। हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। और यहाँ एक और चीज, हमारा खुदा हमारे साथ क्यों है? क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। आज हमें रहनुमाई के लिए, आज हमें मुआफी के लिए, आज हमें उम्मीद, सलामती और रोशनी के लिए अपने खुदा की जरूरत है। अगर हमारा खुदा हमारे साथ ना होता तो आज भी हम नामुआफी में होते, आज भी हम तारीकी में होते, आज भी हम नाउमीदी में होते, और आज भी हमारी जिंदगियों में सलामती ना होती, क्योंकि सलामती का शहजादा तो मेरा और आपका यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह सलामती का शहजादा है तो इसलिए ही आज हम सलामती में हैं। और ये इंसान की सबसे बड़ी और अहम जरूरत थी कि हमारा खुदा हमारे साथ होता। इसलिए उसके नाम का जो मतलब है वो इमैनुएल, वो हमारे साथ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ना सिर्फ इमैनुएल वो हमारा खुदा हमारे साथ है, बल्कि हमारी जिंदगियों में उम्मीद भी है, सलामती भी है, बरकत भी है, रोशनी भी है, और हमारी जिंदगियों में उसका फजल है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के लिए, इमैनुएल के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि यीशु इंसान की सबसे अहम जरूरत है। खुदा हमारे साथ है, ये हमें इससे भी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ना होता तो फिर उसकी हुजूरी भी यहाँ पे मौजूद ना होती। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे खुदा की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, हम उसके हुजूर में हाजिर हैं, हम उसकी बंदगी कर रहे हैं, उसके नाम की प्रस्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा खुदा करीब है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो ईमान
ایمانویل ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور وہی کھول سکتا ہے جو ہمارے قریب ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بڑا فخر ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آج اگر انسانی ہم بات کریں، کسی کے ساتھ کوئی علاقے کا چیئرمین، ایم پی اے یا ایم این اے ہو، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات، بادشاہ تو بڑی دور کی بات، وہ بھی اپنی زندگی میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہے کہ فلاں شخص جو بڑا طاقتور ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں وہ ہمارے ساتھ ہے جو نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ وہ ازلی ابدی بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ آئے اور جیتے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ازلی ابدی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، خدا ہمارے قریب ہے، اس لیے وہ ہمارے دل کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ وہ ہمارے دل کے دروازوں پہ ایک بڑا خوبصورت گیت مجھے یاد آ رہا ہے۔ خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ بڑی خوبصورت اس میں بات، تو بندیا انہوں لبنا ہے کی اوتے واسدہ ہر انسان دے وچ، اوتے ہر بوا کھڑکاؤندا ہے، اوتے پھردا ہے بیڑے بیڑے۔ خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ وہ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ غریب بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں مٹی کے اندر وہ مجسم ہوا، اس نے مٹی کا جو جسم ہے وہ اختیار کر لیا تاکہ آپ اور میں آسمانی مقاموں میں بٹھائے جا سکے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے دل کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ اس کرسمس پر جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے جشن کو منا رہے ہیں، ہم سب نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ یسوع کی پیدائش پتہ کتنے سال پہلے ہوئی؟ کیوں جی؟ تقریباً 2025 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی ہے۔ آج بطور ایماندار، بطور چرچ، بطور کلیسیا ہمیں اس بات کو جانچنے اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یسوع کی پیدائش ہماری زندگیوں میں ہو چکی ہے یا نہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں۔ بائبل مقدس میں ایک آیت کہ یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، یہ آج ہم سب کے لیے ایک سوال بھی ہے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ بھائیوں سے پوچھوں گا، یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ ہمارے دلوں میں۔ کیوں جی؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں میں، اور ہماری زندگیوں میں اس کی پیدائش تب ہوتی ہے جب ہم اپنے دل یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اب میں گناہ میں زندگی نہیں گزارتا کیونکہ میرا یسوع
मेरे गुनाहों के बदले सलीब पे कुर्बान हुआ है। अब मेरा यीशु मेरे अंदर है, मेरे दिल में है। अब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, किसी का ना हक नहीं खाऊंगा, किसी का नुकसान नहीं करूँगा, किसी गुनाह में मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे गुनाहों का कफारा बना है। आज इस क्रिसमस पर हमने उसकी पैदाइश को अपने अंदर लेना है। इस दफा हमने ये अहद करना है कि हमने वो जो जानवरों वाली खुरली है, वो जिसको हम चटनी बना के सजाते हैं, हमने महज उसको नहीं सजाना, बल्कि हमने अपने दिलों की चटनी को खूब सजाना है, ताकि मेरा और आपका यीशु हमारे दिलों में आ सके, ताकि वो हमारी जिंदगियों में आ सके। अजीजों, याद रखिए कि इमैनुएल आपके साथ है, इसलिए आपको अपनी मुश्किलात में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी कमज़ोरी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको मायूसी में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा इमैनुएल आपके और मेरे साथ है। वो नूर, वो जलाल जो गिलहरियों के चौगिर चमका, तो उन्हें कहा गया कि डरो मत। जब मरियम को खुशखबरी दी गई तो उसे ये कहा गया कि डर मत। और आपके और मेरे लिए क्रिसमस खुशी का पैगाम ये है कि वो हमारे खौफ का खात्मा करता है, वो हमें डर से रिहाई बख्शता है, और वो हमें इस चीज़ का वादा करता है कि वो हमारे साथ है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के हालात पर गौर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी निगाहें यीशु पर लगाने की जरूरत है, जिसका वादा है कि वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बला का डर नहीं होना चाहिए। उसके कलाम के वादे मौजूद हैं, जब हम पानियों में से गुजरेंगे वो हमारे साथ होगा, जब हम आग में से गुजरेंगे वो हमारे साथ होगा, वो हमारे संग साथ है, वो आज भी साथ है, वो कल भी साथ रहेगा, क्योंकि ये उसका वादा है। आइए इस क्रिसमस पर हम सब ये इकरार करें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली को लेके आए, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। अब हमने ये इकरार करना है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आइए ये इकरार करें कि दुश्मन के मंसूबे हमारे खिलाफ जो है वो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है। आइए ये इकरार करें कि अब गुलामी के जो बंधन है वो टूटेंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है। आइए ये इकरार करें कि गुनाह की जंजीरें टूट रही हैं, क्योंकि यीशु मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है। आइए ये इकरार करें कि बीमारी के बंधन भी टूट रहे हैं, क्योंकि वो इमैनुएल हमारे साथ है। आइए ये भी इकरार करें कि मेरा दिल मजबूत है, मैं अब घबराने का नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना खूबसूरत ये ज़बूर के गीत है कि मजबूत मेरा दिल है। हमने ये गीत कब गाने हैं कि दिल का मैं कमजोर तो यीशु में नुसान के रखी, बल्कि इस तरह के गीत ईमान में रहते हुए गाइए कि मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया, शौकत दे नाल गावा। आइए इस इकरार को भी करें कि हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, हमारे लिए राहें हमवार हो रही हैं। और अजीजों, यकीन जानिए, जब आप ये इकरार करना शुरू कर देंगे, वो आपकी जिंदगी के वीरानों को दूर
کر کے गुलिस्तान में बदल देगा। वो आपकी जिंदगियों में से बीमारियों को दूर करके शिफा में बदल देगा, कमजोरियों को दूर करके जोर में बदल देगा, मायूसी को दूर करके खुशी में बदल देगा, नाउमीदी को दूर करके उम्मीद में बदल देगा, क्योंकि वो इमैनुएल आपके साथ है। आइए हम ये इकरार करें कि इमैनुएल हमारे साथ है। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ओ रीबा बाबा रसे रे 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 रे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि इमैनुएल हमारे साथ है। अब हमें किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि इमैनुएल हमारे साथ है। हम यीशु जो निजात दहिंदा है उसकी निजात के पूरे पूरे मजे को चख रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। ऐ बाप तेरा शुक्र हो तेरे खादिम के लिए, तेरे ममसू के लिए, जिसकी खुदा मोहब्बत प्यार के वसीले से ये मुमकिन हुआ कि आज मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे बंदा के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता और इस सारी कलीसिया के लिए बरकत और सलामती चाहता है खुदा। मेरी मदद है खुदा, तू अपना हाथ अपने लोगों पे बढ़ाए रखना है खुदा, और ये क्रिसमस इन सब के लिए खुशियों भरा क्रिसमस साबित हो। मायूसियाँ, तंगियाँ, परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और तेरे लोग शादमान हो आए खुदा, तेरे लोग बरकत पाए खुदा। हाजिर जमात में अगर कोई बीमार, परेशान, दुखी है, यीशु के नाम में इन पर रहम कर दे और तेरे बच्चे शिफा पाए, दिलेरी पाए, सलामती पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।